Good morning, students. In this video, we are going to study and understand a very important concept of the trigonometry, that is trigonometric identities. So in the previous videos, we have studied about the trigonometric ratios, that is, and we have already done the questions based on the trigonometric ratios. Now we are going to deal with trigonometric identities. So first of all, identity. In the previous classes you have read about what is an identity. So identity is that an equation whose LHS is equal to RHS, left hand side is equal to RHS, that is called an identity. That means an equation is called an identity when it is true for all values of the variables involved. So now the next is trigonometric identity. So trigonometric identity is an equation involving trigonometric ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of the angle or angles involved. So now in this trigonometric identities we have three fundamental identities. There are three fundamental identities. Fundamental identities, what are they? Number one is sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Next we have 1 plus tangent square theta equal to secant square theta. You can say sec square theta also. And the third one is 1 plus cot square theta या cotangent square theta is equal to cosecant square theta or cosec square theta. So these are the main three identities, fundamental identities. So on the basis of these identities, so we can also determine the values of other trigonometric ratios. So first of all, we are going to prove these identities by geometrically. Prove the first fundamental identity, that is sine square theta plus cos square theta equal to 1 geometrically. So here ABC is a right angle at B. Let angle A, we call it theta. So theta is an angle. So theta we are considering an angle. Therefore BC will be your perpendicular. Adjacent side AB is base and the angle side opposite to right angle is hypotenuse. Now let us proceed. In triangle ABC, right angled at B. So by Pythagoras theorem, we have AC square is equal to AB square, or you can say BC square first. BC square plus AB square. So hypotenuse का square equal to perpendicular square plus base square. So children, आपको find करना है sin square theta और cos square theta दोनों का sum आना चाहिए 1 के बराबर. That is sin square theta plus cos square theta 1. तो sin क्या होता है? Sin होता है perpendicular upon hypotenuse. और cos क्या होता है? Cos is also base upon hypotenuse. So आपके दोनों के डिनोमिनेटर में hypotenuse आ रहा है. आपको ये समझ लेना है मैंने प्रूव क्या करना है. sin और cos, sin p अपॉन h होता है, cos b अपॉन h, दोनों के डिवाइड में डिनोमिनेटर में hypotenuse है. तो हम इस इक्वेशन को थ्रू डिवाइड करेंगे किसके साथ? इसको फर्स्ट रखेंगे हम, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग throughout by AC square. Why AC square? Because hypotenuse इनके दोनों के डिनोमिनेटर में, तो hypotenuse हमारा AC है. तो we'll write dividing equation 1 throughout by AC square. AC square इसलिए क्योंकि AC hypotenuse है, दोनों के डिवाइड में hypotenuse है. So we write AC square upon AC square. क्यों स्क्वायर? इसलिए क्योंकि दोनों के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है. सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर एंड देन AB स्क्वायर के डिवाइड में भी
AC square. So AC square आपका कैंसिल हो जाएगा, we get 1. BC upon AC, so BC upon AC का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और AB अपॉन AC का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. सो वी गेट 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AC. BC क्या है? परपेंडिकुलर. AC क्या है? हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा. तो BC अपॉन AC क्या है? साइन थीटा, लेकिन साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का साइन. AB अपॉन AC मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर. सो देयरफॉर वी राइट इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है. ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर. और यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस, तो ये भी एक आपके पास आइडेंटिटी आ गई. ठीक है, और यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो याद रखिए ये सारी चीजें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है. इससे हमने और दो बनाई. क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. चलिए और दो हम प्रूव कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेट अस start with second identity, fundamental identity, that is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So 1 plus tan square theta is equal to sec square theta prove करना है. So again we take right triangle ABC, right angle that B, हमारा थीटा कंसिडर एंगल करेंगे तो परपेंडिकुलर BC, AB हमारा एडजेसेंट साइड बेस है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है. So again we take PGT by Pythagoras theorem, AC square upon is equal to BC square plus AB square. So keep it first. Now what we have to prove? आपको प्रूव क्या करना है? tan थीटा 1 plus tan square थीटा करना है sec square थीटा. So children, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sec भी होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. So tan होता है P अपॉन B, sec होता है H अपॉन B. तो इस बार दोनों के डिनोमिनेटर में बेस है, बेस. सो आप क्या करेंगे? आप इस पूरी इक्वेशन को बेस से स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो बेस आपका क्या है? AB. तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय किससे? AB स्क्वायर से. AB स्क्वायर एंड वी गेट AB स्क्वायर. क्यों? क्योंकि बेस है. तो वो क्या आएगा फिर? AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, देन BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी कैंसल. यू कैन राइट इट एज 1. सो व्हाट इज AC अपॉन AB? AC क्या है? हाइपोटेन्यूज. AB क्या है आपका? बेस. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा. सेक और एंगल क्या आपका है? थीटा, लेकिन साथ में ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा. BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है टेंजेंट, और एंगल आपका थीटा, ऊपर स्क्वायर प्लस 1, और यू कैन राइट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. आपने प्रूव कर दिया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर. सो दिस यू हैव प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो यहां से आप दो और चीजें आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं. क्या? कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और आप लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा 1 के बराबर. सो यहां से भी आपका, और यू कैन राइट इट एज दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर. तो ये भी आपकी यहां से, इससे आप और भी 2-3 आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं. सो ये सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं जब आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालेंगे, प्रूव करेंगे. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द थर्ड एंड द लास्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा.
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो चिल्ड्रन सेम प्रोसेस करना है, कहाँ तक, आपका पीजीटी तक जब आपने लगाया सेम प्रोसेस। अब आपने देखना है कि मैं डिवाइड किससे करने जा रहा हूँ, डिवाइड किससे करूँगा मैं, ठीक है। सो आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ से क्या चीज़ प्रूव करनी है। सो आपको क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो इसके लिए आपको क्या है, कॉट। सो कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बार ही आपका डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर कौन है, वो है बीसी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय बीसी स्क्वायर लिखेंगे, और प्रोसेस जैसे आपने फर्स्ट में और सेकंड में किया सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, लेकिन इस बार बीसी स्क्वायर आएगा डिवाइड में, प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इट एज ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कैंसिल तो 1 रहेगा, और ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है, सो वी राइट कोसेक, एंगल क्या है, थीटा, और साथ में रेज पावर 2 है, इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी, ए बी बेस और बी सी है परपेंडिकुलर। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, एंगल क्या आपका, थीटा और स्क्वायर। सो आपने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया जो आपके पास फंडामेंटल आइडेंटिटी। और अब आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और आप इसको एक और चीज बना सकते हैं कि 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यू कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा is equal to -1. So these are the 3 main fundamental identities जो आपने प्रूव की ज्योमेट्रिकली, और इन्हीं के जरिए हम बाकी फंडामेंटल जो बाकी आइडेंटिटीज होगी उनको प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब भी आप आइडेंटिटी नेक्स्ट इसके आगे वाली आइडेंटिटीज प्रूव करोगे तो उनमें हर एक आइडेंटिटी को आपने पहले साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा।